السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 36۔ باپ خادم۔ اس کی تنہائی کا سوداگر ہوں میں، اس کی ہمراہی کا خریدار ہوں میں۔ باورچی خانے میں منسلک اس گودام میں میز لالٹین ایک مرتبہ دوبارہ سجایا تھا، اس بار اپنی بقا کے لیے نہیں، کسی کی بربادی کی خاطر۔ ایک سلطنت کو ڈھا کر دوسری کی تاج پوشی کے لیے حملہ حکمران نہیں، اس سے قریبی لوگوں پر کیا جاتا ہے۔ بھوری سنہری نگاہیں سامنے مرکوز تھی، اور المیرا کا قریبی کون ہے؟ نیلی آنکھوں میں شکوک تھے۔ مرد کے چہرے پر جواب تھا، عورت کی نگاہوں میں سوال۔ المیرا کا قابل بھروسہ کون ہے؟ گل کے ذہن میں گھنٹی بجی۔ ادوب، دونوں نے بیک وقت کہا۔ ان کے پاس اناج قلیل ہو رہا تھا، اور یمن سے سامان آنے میں کچھ دن لگیں گے۔ چنانچہ ملکہ کے نئے احکامات تھے کہ تب تک لوگوں کو ایک وقت کا کھانا قطاروں میں لگ کر ملے گا۔ ہال میں 4-5 ملازم ذبیح اللہ کی زیر نگرانی دیگ اور سالن کے ساتھ کھڑے تھے۔ ذبیح اللہ کمر پر ہاتھ باندھے، سیاہ نگاہوں اور منڈے ہوئے سر سمیت خاموش تھا۔ آنے والا پہلے سالن والی قطار میں لگ کر اپنا برتن بڑھواتا اور پھر پلٹتے ہوئے نان لے کر میز پر جا بیٹھتا۔ دوسری منزل پر کھڑی ادوب نیچے جھانک رہی تھی۔ عام سے سفید لباس پہنے، اس کے چھوٹے نارنجی بال اور تل سے بھرا چہرہ تر و تازہ تھا۔ ملکہ کی یہ اعتدال پسندی اس کو قبول تھی، تبھی اس سارے نظام کی نگرانی اسے سونپی گئی۔ نجف کے ساتھ ایک اور مرد کھڑے لوگوں کے برتنوں میں شوربہ نما کھانا ڈول رہے تھے۔ جب قطار میں ہی ایک مرد نے اونچی آواز میں انہیں پکارا، ہمیں اتنا کم کیوں دیا جا رہا ہے، اور یہ جو سپاہی ان کو کیوں دگنا دیا ہے؟ کچھ ہی فاصلے پر موجود ایک میز کی طرف اشارہ کیا۔ 2-3 سپاہی عورتوں نے اپنا کھانا روک کر اسے دیکھا۔ وہ ملک کا دفاع کر رہی ہے صاحب، تبھی ان کی اچھی صحت کے لیے دگنا دیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گی تو ہمیں ہمارے گھر کب ملیں گے؟ دوسری منزل پر سے مسکرا کر دیکھتے اس نے عوام کو کام کرنا چاہا۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بھی فوج کا حصہ بننا ہے۔ ایک طرف بیٹھے دوسرے نوجوان نے ہاک لگائی۔ اس کی دیکھا دیکھی کھانے کی لالچ میں 2-3 اور لوگ بول پڑے۔ ادوب کے چہرے کا رنگ پھیکا ہوا۔ آپ سب کے مطالبات جائز ہے، میں ملکہ تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ معاملات بگڑتے اس نے انہیں جھوٹی امید تھما دی۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر وہ سب خاموش ہو گئے۔ یہ سب اس نے دل سے نہیں کیا، دل تو نہ جانے کب کا اسے ملکہ کے احکام پر مارنا پڑا۔ اب تو وہاں بس ایک ضروری گوشت کا لوتھڑا تھا۔ کیا واقعی تم ملکہ سے بات کرو گی؟ نارنجی بالوں والی مشیر کی بھویں الجھن سے قریب آئی۔ اس نے اپنے کندھے کے پار دھیرے سے گردن پھیری۔ فاتر اسلام کندھے پر ایک بچے کو سلائے حکیم کے دواخانے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے ملکہ تمہاری بات مانے گی؟ اسے ہمیشہ سے ہی ملکہ کا خادم خاص پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت نفرت ہوتی تھی، نگاہ میں حقارت اور زبان پر طنز۔ میرا مطالبہ جائز ہے، فاتر نے کہا۔ کچھ نہیں، بس زمین کو ہلکے سے تھپکتے مسکرانے لگا۔ ادوب اس بچے کو پہچان گئی تھی۔ تمہیں اس کی دیکھ بھال کی اجازت ہے؟ فاتر کا ہاتھ رک گیا۔ مسکراہٹ ختم ہو کر دوبارہ آئی۔ اگر تمہیں ملکہ کا خوف نہ ہوتا تو یہ سوال مجھ سے کبھی نہ پوچھتی۔ سفید لباس والی لڑکی کے لب آدھے وا ہوئے۔ وہ یہاں کے اصولوں کے خلاف تھی، نہ انہیں بدل سکتی تھی اور نہ ہی اپنی آواز کو حدود سے باہر نکال سکتی تھی۔ مگر کیا اس کے ذہنی تناؤ سے خادم بھی واقف تھا؟ نہیں، ملکہ اتنی ظالم بھی نہیں، مان ہی جائیں گی میری بات۔ خوش فہمی پر اگر سنگ نکلتے تو ادوب کا سر اس وقت ان سے بھرا ہوتا۔ چراغ کی جلتی مشک قہوے کی خوشبو میں گھل رہی تھی۔ مگر آپ ادوب کو منائیں گی کیسے؟ لڑکی کا سوال جائز تھا۔ فاتر اسلام نے سامنے کھلی کتاب پر ایک سطر لکھی، منہ سے الفاظ اس کے متضاد ادا کیے۔ تخت جنس نہیں، لالچ اور قوت دیکھتا ہے۔ گل کے کان سرخ ہوئے۔ اور لالچ ہر انسان کی عقل اندھی کر دیتی ہے۔ تو اب وہ لوگ جنہیں ہم اپنے اہم فیصلوں میں شامل نہیں کرتے، جن کو ہم ایک میز پر بٹھا کر برابر نہیں سمجھتے، اب ہم ان کے مطالبات پر چلیں گے۔ المیرا ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جھلکتی سختی کو آج کوئی جھوٹ کی چادر ڈھانپ نہ سکی۔ شربت کے گلاس کو لبوں سے لگاتے وہ ایک بازو پھیلائے اسے دبوا رہی تھی۔
ملکہ، ہماری فوج کی تعداد ویسے بھی کم ہے، اگر ہم اس وقت ہم تفرق کرنے بیٹھ گئی تو ختم ہو جائیں گی۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے شربت ختم کیا۔ ان میں سے کسی کو بھی ملک کی دفاع میں دلچسپی نہیں، وہ صرف اپنی بھوک کی لالچ کے لیے آگے آئے ہیں۔ کم از کم قدم تو بڑھایا ہے، اگر نہیں ہو سکی محنت تو چھوڑ دیں گے یا نکالے جائیں گے۔ ادو بے صبری سے اس کے صوفے کے ہتھے تک آئی۔ نکالو گی تو یہ تم پر خود غرض ہونے کا الزام لگائیں گے، رکھو گی تو ان کا اناج دانہ کہاں سے پورا ہوگا۔ وہ جیسے سارا ملبہ ادو پر ڈالے اسے بیوقوف جتا رہی تھی۔ تعداد زیادہ ہوئی تو ہم اناج بانٹ دیں گے تاکہ یوں وہ بھاگ جائے۔ المیرا نے اپنا بازو دباتے بچے کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ، کوشش کرنے میں حرج تو نہیں، اگر اسے اپنی عزت نفس کی پرواہ نہ ہوتی تو شاید المیرا کے ہاتھ بھی پکڑ لیتی۔ ایسی کوششوں میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے تم یہ تسلیم کر لو، سب انسان برابر نہیں، اگر سب برابر ہوتے تو تفریق اور شمار کبھی وجود میں نہ آتے۔ ادب کے ہاتھ پر ہلکی سی تھپکی دیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاج ایک طرف مخملی گدی پر رکھا چمک رہا تھا۔ انسان برابر نہ ہو مگر ان کی ضروریات تو ہے نا۔ ہاں، فرائض اور حقوق میں کسی کا فرض بھاری ہوتا تو کسی کا حق، مگر زندگی گزارنے کی بنیادی ضروریات سے انہیں محروم رکھ کر آپ صرف ظالم کہلائیں گے۔ المیرا نے جمائی روکی، انگڑائی لیتے ہوئے معصومیت سے پلٹی۔ میں کیا یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں؟ آنکھیں گول کرتے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ نہیں، مگر آپ مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے ہماری فوج کی بہتری روک رہی ہیں۔ المیرا نے انگلی سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ ادب نے گردن ہاں میں ہلائی۔ بغیر تاج والی عورت نے بے اختیار آتے قہقہے کو ہاتھ رکھتے دبایا۔ ادب کے حوصلے پست اور غصہ بلند ہوا۔ کتابی باتیں اچھی کرتی ہو مشیر خاص، تمہیں ادیب ہونا چاہیے تھا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے ایک طرف موجود غسل خانے میں بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی ادب اس عورت کی چٹائی پر ہکا بکا تھی۔ مجال ہو جو وہ کبھی کسی کی سن لے۔ ادب کے جانے کے بعد جب غسل خانے کا پردہ ہٹا تو ملکہ دبے قدم باہر آئی۔ آئینے کے سامنے رکتے کچھ دیر خالی نگاہوں سے خود کو گھورا۔ اس کا تنہا ہیرے والا تاج پیچھے رکھا ہمیشہ کی طرح حسین تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ناک میں سے خون بہنے لگا۔ یہ 2 دن پہلے بھی ہوا تھا۔ اچانک ناک یا تھوک کی مدد سے خون کا آنا۔ ہاتھ کی پشت سے اسے پوچھتے وہ ابھی بھی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ جب یہ ہیرا تنہا چمک سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ المیرا عنایت محسن کو سہاروں کی ضرورت نہیں رہی۔ گال پر لگا خون دیکھتے اس کے گول ہونٹ اچانک سے مسکرانے لگے۔ آنکھ کے کنارے چھوٹے ہوئے تو مسکرانے کی وجہ سے وہ تقریباً غائب ہو گئی۔ تازہ خون کی بو وہ اپنے ارد گرد محسوس کر سکتی تھی۔ باورچی خانے کی دیواروں سے ان کی سرگوشیاں ٹکراتی آپس میں مل جاتی۔ بدگمانی بغاوت کی پہلی سیڑھی ہے۔ لالٹین کی پرسرار سی روشنی اور رات کے سناٹے میں اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، اور پہلی سیڑھی پر ہی اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے تو بدگمانی بے ایمانی کا روپ دھار لیتی ہے۔ مرد نے کتاب پر ایک اور سطر لکھی۔ منہ سے نکلنے والے الفاظ قلم سے تشکیل شدہ لفظوں سے مختلف تھے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی ملک میں ناگہانی آفات آئی ہے، امرا اور وسلا نے اپنی آسائشات کو خیرآباد صحیح کم ضرور کیا ہے۔ کہاں ان سب کو یوں بٹھا کر ایک ساتھ کھانا پیش کیا جاتا تھا جیسے کوئی دعوت ہو، اور کہاں اب ایک ملازم ان کے کمرے میں کھانے کے طباخ رکھے جا رہا تھا۔ اپنے پلنگ پر بیٹھے وہ خالی نگاہوں سے ان برتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ چاول، سبزی، سالن اور نان سب کچھ تھا، کم ضرور مگر تھا۔ سیاہ نیلے رنگ کے شب خوابی کے لباس میں بیٹھے اس کے بال نہانے کی وجہ سے نم تھے۔ گہری سانس بھرتے اس نے چمچ اٹھاتے چاولوں میں رکھی، جب نظر ٹھٹک کر واپس پلٹ گئی۔ کانٹا چمچ کے نیچے ایک کاغذ بہت دھیان سے رکھا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اٹھاتے ادوب نے کھانا چھوڑ دیا۔ چہرے کے تاثرات کوئی اہم فیصلہ لیتے بگڑے ہوئے تھے۔ بار بار پڑھنے پر بھی اس کاغذ کا پس منظر سمجھ نہ آیا۔ ہل یکتب بالقدم بالید، یہ پاؤں سے لکھا ہے یا ہاتھ سے؟
रखे को रोशनी में करते खुद कलामी की। तो आप अदूब को अगली मलिका बनाएंगे? किताब पर फातिर का लिखा जवाब पढ़ते सवाल किया। नहीं, हम सिर्फ उसे ये तासुर देंगे। गहरी सांस लेते उसने कागज़ पर कुछ और लिखा। अगर मलिका के फैसले ने मुतमईन नहीं किया तो अभी बजने वाली घंटी के बाद रात की तीसरी घंटी पर बावर्ची खाने आ जाना। वो पिछले 3 घंटों से उस रुके को इतनी मर्तबा खोल बंद कर चुकी थी कि अब अपने ही पसीने की वजह से स्याही का रंग फीका पड़ गया। उसे बावर्ची खाने आए कुछ ही देर हुई थी। तब से अब तक वो उस नीम अंधेरी जगह पर आगे पीछे बेसब्री से टहल रही थी। पैगाम भेजने वाले की शनाख्त से यकसर लाइल्म खुद से ये अहद करती कि अगर कागज़ भेजने वाला शख्स अगले कुछ लम्हात में यहाँ नमदार ना हुआ तो वो ये सब एक घटिया मजाक तस्लीम करते चली जाएगी। उसकी ख्यालात की रेल पटरी पर आकर रुकी जब कदमों की चाप ने उसकी हसासियात चौकन्ना किए। दोनों हाथों में कागज़ को सख्ती से दबोचे वो दरवाजे से झांकने लगी जब सियाह लिबास में एक खूबसूरत मर्द अंदर दाखिल हुआ। अदू फैसला न कर पाई कि मुतमईन हो या मजीद चौकस। ये तुमने भेजा था? करीब से गुजरते फातिह इस्लाम को पर्ची दिखाई। हाँ, मगर तुम आई क्यों? बर्तनों को लड़ते उसकी अदूब की जानिब पुश्त थी। उसकी बात पर मशीर खास पर गढ़ो पानी गिरा। वो आखिर आई क्यों? क्या वो अपनी मलिका से गद्दारी कर रही थी? लगता है मलिका ने तुम्हारी फरियाद रद्द कर दी। चेहरा फेरते तंज किया। कहा तो था वो सुनने वालों में से नहीं। मुझे क्यों बुलाया है? अब कि उसने लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की। क्योंकि मैं यहाँ होती तफरीक और ज़्यादती से तंग हूँ। आज खाने में मलिका की खुदगर्जी आई है। कल को न जाने वो और क्या कर डाले। फातिर का जुमला एन अदूब के जज्बात की अक्कासी करता था। मलिका अपनी जगह दुरुस्त है। तुम्हारा मुतालबा भी मायूब नहीं था। अपनी बात काटे जाने पर वो सोच में पड़ गई। फातिर इस्लाम की बातें हरगिज़ गलत नहीं थी। मैं रानी कामिल का पैगाम लाया हूँ। गीले बर्तनों को उठाते वो अब कपड़े से रगड़ने लगा। कामिल के नाम पर वो स्लेब के करीब आई। तुम दुश्मनों की सफ में खड़े हो गए। अदूब के लहजे में नापसंदीदगी थी। जब अपने तजाद करने लगे तो रकीबों से ताल्लुकात बढ़ाने पड़ते हैं। अदूब को उसके आसूदा लहजे पर तरस आया। गहरी सांस खारिज करते फातिर ने खड़े होने के लिए स्लेब का सहारा लिया। ये परसों से आने वाला तीसरा उसे तीसरा चक्कर था। यूं ही खड़े खड़े मंजर धुंधला जाता और उससे अपने कदम डगमगाते महसूस होते। तुम ठीक हो? अदूब ने पानी की तलाश में निगाहें दौड़ाई। फातिर ने हाथ उठाते तसल्ली दी। माह निगार मलिका के खिलाफ साजिश रचा रही है। अदूब की सारी तवज्जो उस एक जुमले ने खींच ली। मलिका एक के बाद दिगर उसूल और रिवायात तोड़ते मुस्तकबिल के लिए मसाइब पैदा कर रही है। माह निगार चाहती है कि उन्हें हटाकर माह कामिल को तख्त पर बिठाया जाए। ये सब तुमसे किसने कहा? फातिर अब खुश्क बर्तनों को एक तरफ बनी अलमारी में रखने लगा। माह कामिल ने। अदूब के पैरों से ज़मीन निकल गई। मगर वो वापस आने की ख्वाहिश नहीं रखती। खुद सोचो, कोई हुक्मरान एक मुस्तहकिम निज़ाम को छोड़ दे किसी ऐसे मुल्क की भाग दौड़ क्यों संभालेगा जहाँ ना ज़मीन अपनी है ना रिज़्क काफ़ी। चेहरे के उतार चढ़ाव से वाज़ेह हो रहा था कि फातिर के अल्फाज उस पर बाअसर थे। इस सब में मेरा क्या अमल दखल? कामिल निगार को इनकार कर चुकी है मगर वो अपने इरादों पर बज़िद है। मलिका को हटा दिया गया तो जो थोड़ी बहुत आज़ादी है वो भी छिन जाएगी। इस वक्त हमें सिर्फ मुस्तकबिल का सोचना है और सिर्फ तुम कर सकती हो। वो सिर्फ तुम कर सकती हो। बिला आखिर फातिर ने चेहरा फेरा तो वहाँ फरियाद और दुख था। एक पराए मुल्क का इंसान किस कदर इंसानियत परस्त था। अदूब का दिल मोम हुआ। मैं कैसे? फातिर के अंदाज में अचानक आने वाला जोश ढका नहीं था। इस पूरे किले में तुम वो वाहिद औरत हो जो हर इंसान का दुख समझती है, जो हम सब में बराबरी रखती है। सिर्फ तुम ही हो जो ये जालिमाना निज़ाम ख़त्म कर सकती हो। अदूब ने मज़ीद वजाहत के लिए उसकी आंखों में देखा। तुमसे बेहतर तख्त को कोई नहीं संभाल सकता। हमारी मलिका तुम्हें होना चाहिए। लबानी औरत का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो उसे बगावत पर उकसा रहा था। अगर सच कहा जाए तो अदूब को उसमें कुछ ख़ास गैर मुनासिब ही नहीं लगा। चिराग की रोशनी से बनते दो साए काफ़ी लम्हात के लिए खामोश रहे। और अगर अदूब ने हमें धोखा दे दिया? नीली आंखों का सवाल बरहक था। एहसास जुर्म वो दिमक है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुद एतमादी ख़त्म कर देता है। फातिर ने बुझे हुए लहजे में कहा। खुद एतमादी हौसला और बहादुरी पैदा करती है। जब वो ही नहीं रहेगी तो अदूब एक जिंदा लाश से कम नहीं। मर्द की आंखें बताती थी वो मजबूर था। ये धोखा धका उसका शेवा नहीं। आज़ादी की लालच ने आज उसके उसूल भी तोड़ दिए।
मैं अपनी ملکہ کے خلاف کیسے جاؤں؟ وہ ملکہ جو صرف اپنا سوچتی ہے، عوام کا نہیں۔ وہ ملکہ جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی۔ وہ تمام جانیں جو نیچے گودام میں مرض کی وجہ سے مر رہی ہے۔ ان سب کی موت میں تم بھی برابر کی حصے دار ہو۔ فاتح نے نیا حربہ آزمایا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا تو کیا ہوا؟ انسان کے اندر احساس جرم بیدار کرنا اس سے بہتر کس سے آتا تھا؟ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ فاتح کے الفاظ اس کے اندر شک کا بیج بونے لگے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم نے کچھ کیا نہیں۔ انگلی اٹھائے اس کے لہجے میں خالص حقارت تھی۔ تمہارے ہاتھ بندھے ہیں کیوں کہ تمہارے پاس مطلوبہ مقام نہیں۔ اگر تم ملکہ ہوتی تو ہمیں اتنی مشکلات نہیں سہنا پڑتی۔ دکھ سے کہتے چہرہ جھکا دیا۔ ادو بدگمانی کی سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی۔ بس فاتح اسلام کا ہاتھ تھامنے کی دیر تھی۔ لرزتے ہوئے لبوں کو سختی سے ملاتے اس نے ہاتھ میں تھامی پرچی دیکھی۔ کیا بہتری کے لیے کوئی اور راستہ نہیں؟ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ فاتح اسلام نے ادوب کو یوں دیکھا جیسے وہ کٹہرے میں کھڑی کوئی قابل نفرت مجرم ہو۔ راستے مختصر ہے۔ اگر نگار حکومت میں آ گئی تو تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالے گی۔ تم وقت لے لو مگر بھولنا مت۔ انگلی اٹھا کر یاد دہانی کروائی کہ ہم سب پر ہونے والی زیادتی میں تم بھی برابر کی شریک ہو۔ ظالم کے خلاف نہ بولنے والے بھی ظلم میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ ادھوب کی آنکھ کے کنارے نم ہوئے۔ پانی کا ایک قطرہ کاغذ پر گرا۔ مدھم ہوئی سیاہی پھیل گئی۔ فاتح اسلام خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ وہ اس عورت کی ہلکی سسکیاں سن سکتا تھا۔ ضمیر چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ دو نمبری اسے راس نہیں آئے گی۔ لالچ نے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب برتنوں کو مکمل ترتیب دینے کے بعد وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹا۔ ادو اب باورچی خانے سے جا چکی تھی۔ تھکی تھکی سانس نکالتا وہ بھی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا جب سیڑھیوں پر ہی اسے کسی کی آواز نے روک دیا۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حیرت اس پر فرض تھی۔ وہ جو اندازہ لگائے بیٹھا تھا کہ ادب سوچنے کا ایک دن تو لے گی ہی، سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی نڈر نظروں سے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ فاتح اسلام کے دل میں ایک وسوسہ جاگا۔ کیا وہ اس انسان پر اعتبار کر سکتا تھا؟ آج اس نے خود سے یہ نہیں کہا کہ کیا میں اس عورت پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ جانے انجانے میں ہی ماہ ملکہ اس کے سوچ کا زاویہ بدل رہی تھی۔ باب منصف، یہ کیا ہے؟ مدھم ہوتی لالٹین کو دوبارہ سے جلاتے گلجان نے فاتح کے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھتے سوال کیا۔ دبیر کی وہ کتاب جس میں ان مرد اور عورتوں کے نام درج ہے جو ماہ ملکہ سے مطمئن ہے یا غیر مطمئن۔ سرخ ورق والی کتاب کو دیکھتے گل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ یہ ہمارے کام کیسے آئے گی؟ فاتح کو لگا وہ سوال یہ کرے گی کہ کتاب ہاتھ میں کیسے آئی۔ اچھا تھا نہیں کیا ورنہ اسے اپنا کارنامہ دوبارہ سے دہرانا پڑتا۔ چہرہ جھکاتے گود میں رکھا ہاتھ ذرا سا روشنی میں کیا۔ انگلیوں پر خراشیں تھی اور ایک دو جگہوں پر جلد کی کھرچی تھی۔ زخمی ہاتھ کو دیکھتے درد دوبارہ سے تازہ ہوا۔ منصف کی ملاقات کمرے میں موجودہ ننھی کھڑکی توڑنا اتنا بھاری پڑے گا تو وہ یہ کتاب کبھی نہ چراتا۔ قید میں کتنے دن ہو چکے تھے؟ 4 5 6 روز۔ کوئی نیا انسان آتا، اسے کھانا دیتا، کچھ دیر ذہنی تکلیف دیتا اور پھر پورا دن تنہائی میں چھوڑ دیتا۔ تنہائی دبیر السازار کی ساتھی تھی۔ ماہ ملکہ والے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اسے قید کے بجائے سکون میں رکھا ہوا ہے۔ اگلی مرتبہ ہمارے خلاف جانے سے پہلے سوچ لینا، نتائج اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ آج ماہ نگار اس سے ملنے آئی تھی۔ سلاخوں کے پار کھڑے اس مرد کی پشت کو دیکھتے بہت سے جملوں کے بعد یہ آخری جملہ تھا۔ دبیر کا سایہ سامنے دیوار پر بنا تھا۔ اب تک اس سے کماری، ماہ کامل، ذبیح اللہ اور نگار ملنے آئے تھے۔ تمہاری کوئی ضرورت؟ سوال کے بعد کچھ دیر تک قیدی کی جانب سے خاموشی رہی۔ جب ماہ نگار کو محسوس ہوا کہ وہ بولنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو چراغ کا رخ پھیرتے آگے بڑھ گئی۔ ایک کتاب، دبیر السازار کی گھٹی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ایک کتاب اور قلم۔ ماہ نگار نے نہ اس کی خواہش رد کی نہ حامی بھری۔ کچھ عجیب سا تھا اس کی نظروں میں جن سے وہ دبیر کی پشت کو دیکھتی گئی۔ کم از کم کسی کو اس خواہش کی توقع نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد روشنی جا چکی تھی۔ اب کل کا انتظار واجب تھا۔ اسے کل تک کا انتظار نہ کرنا پڑا۔ شاید نگار رات کے دوسرے پہر آئی تھی اور اگلا روشنی نشین صبح کے پہلے پہر۔ چراغ کو زمین پر رکھتے نئے آنے والا کوئی آدمی تھا۔ دبیر نے اپنی کتاب کاغذ سے نگاہ نہیں ہٹائی۔ تو یہاں رکھا گیا ہے منصف کو؟ سلاخوں کے اندر سے ہاتھ ڈالتے بھمن کے ہونٹوں کا کنارہ اٹھا تھا۔ ویسے تمہارے وہ دوست کوشش کر رہے ہیں تمہیں نکال لیا جائے۔ دیکھتے ہیں کب تک یوں ہی کوشش جاری رہے گی۔
झुकते हुए उसने खाने के बर्तनों को एक तरफ बने खाने से अंदर खसकाया। दबीर ने कागज पर लकीरें खींचना ना छोड़ी। रोशनी का कोई तो फायदा हो, तुम्हें बहुत जल्दी मार दिया जाएगा। भम्मन के हाथ बर्तनों पर जम गए, मुस्कुराहट कदरे कम हुई और माथे पर खुद की कुछ लकीरें नमूदार हुई। अच्छा, खौफजदा कैफियत को काबू करते उसने पेशानी मसली और उठ खड़ा हुआ। सफ़ेद जलबिया उसकी कसरती जसामत को वाज़ेह किए था। तो तुम नजूमी भी हो। उसकी हंसी बे इंतहा हद तक खोखली और मक्कार थी। दबीर की जगह कोई और होता तो उस हंसी के पीछे छुपा डर पहचान ना पाता। वैसे तुम्हारी वो मलिका बड़ी ही कोई मुसीबत है, एक नंबर की सरदर्द। अलमीरा की शान में गुस्ताखी करते उसने सलाखों के अंदर से बाजू लटका दिए। पता नहीं खुद को क्या समझती है। एक बार उसे माह कामिल जी तख्त से हटवा दे, फिर देखना तुम सबके साथ हम क्या करते हैं। क्या तुम वाकई हम हो? दबीर ने बर्तनों को छुआ तक नहीं। उसके सवाल पर बाहर खड़े मर्द के तासुरात पेचीदा हुए। मतलब? दबीर जवाबन खामोश रहा। बम्बन पाशा कुछ देर उसके जवाब की आस में सब्र करता रहा। सलाखों से मुंह फेरते जरा सा हंसा। तुम सिर्फ मुझे उलझा रहे हो, चाहते हो तुम्हारी तरह मैं भी एक बेवकूफ़ कदम उठाऊं? उसकी हंसी दबीर की बेबसी पर तंज कर रही थी। वो गंजा अक्ल से खाली है और कुछ नहीं। बम्बन की हतमी राय थी। बम्बन के कह कहे और जुमले दबीर पर बिल्कुल बेअसर थे। कागज पर इन्हमाक से लकीरें खींचते उसने भमन की मौजूदगी पर कोई रद्द-अमल ना दिया। बाहर खड़े शख्स के लिए समझना मुश्किल हुआ कि क्या कैदी बेजार है या बेपरवाह। वैसे इस किताब और कलम का क्या करोगे? जिंदगी के आखिरी सालों पर कहानी लिखनी है। वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि कोई मौका ऐसा हाथ लग जाए जिस जिस पर वो उसकी धज्जियां उधेड़ दे। दबीर उसकी हर कोशिश पर नाकामी की लकीरें खींच देता। मुझे लगा तुम अपनी गिज़ा मांगोगे, मगर अफसोस। हाथ में थामी नन्ही घड़ी में वक्त देखते उसने सर दाएं बाएं हिलाया। मुलाकात का वक्त तमाम हो गया है। अगर वो वापस ना गया तो न जाने उसके साथ क्या किया जाए। ज़मीन पर से चिराग उठाते दबीर पर लानत भेजते वो पलट गया। तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। अपनी तरफ से दबीर का बोले जाने वाला यही पहला जुमला था और यही आखिरी भी हुआ। बमन को ना चाहते हुए भी पीछे देखना पड़ा। अंधेरे में बैठे उस मर्द के पांव से रोशनी टकरा रही थी। वाज़े चेहरा वाज़े नहीं था। क्या दबीर उसे देख रहा था? अगर हाँ तो किन नज़रों से? तेज कदम उठाते वो वापस आया और कैद खाने के अंदर रोशनी फैलाई। दबीर अलसाजार अब कलम कागज एक तरफ रखे दीवार की तरफ चेहरा किए लेटा था। बमन को अपनी दिमागी हालत पर गुस्सा आया। कहाँ वो उस नशे की बातें सुन रहा है? कैद में बैठा भूखा प्यासा इंसान मेरी किस्मत का फैसला क्या करेगा? खुद से बड़बड़ाते वो आगे बढ़ गया। रोशनी खत्म हो गई, अब अंधेरा, तन्हाई और खामोशी। दबीर अलसाजार के 3 हमराह थे। बाब मुहाफिज। कौन सोच सकता था कि अलमीरा का लिया गया फैसला आगे जाकर उनके हक में साबित होगा। दबीर की वो शिकायतों से भरी किताब उनके कितने काम आई थी। ये गुल की सोच से भी ज़्यादा कारआमद निकली। अदब अब उनके साथ थी। 2 से 3 लोगों पर मुश्तमिल व मुख्तसर मगर मजबूत गिरोह सल्तनत को गिराने पर कामज़न था। तीनों ने अपने काम बांट लिए। फातिर खाने के बर्तनों में उन तमाम लोगों के लिए छुट्टियाँ और रुके छोड़ता जाता जो पहले ही मलिका के निज़ाम के खिलाफ थे। गुलमश के दौरान उन कुछ लोगों को रोके या कागज़ के टुकड़े कुमारी और दीगर सिपाहियों की नज़रों से बचाकर बांट देती जो आवाज़ उठाना तो चाहते हैं मगर ज़रिए से महरूम थे। और पीछे रह गई अदूब। वो अपने इर्द गिर्द वज़रा या अमरा जो अलमीरा के फैसलों से तंग थे उनको कागज़ के ज़रिए वही पैगाम पहुंचाती जो माह मलिका के किले में गर्दिश करती। हर कागज़ रुका चिट्ठी, पर्चा या ख़त का लबाब था। 2 दिन बाद रात के दूसरे पहर कुतुब खाना, ना मकसद दर्ज ना मौक़िफ़ का पता, ताकि लोग तजस्सुस से मजबूर चले आए। 2 दिन बाद, जैसा कि फ़ातिह ने अंदाज़ा लगाया था, सिर्फ निस्फ़ या उससे भी कम लोगों की तादाद इस आबादी में से कुतुब खाने आते थे जिससे उन्होंने राब्ता किया था। वो मायूस नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता गुल की उदासी उसके मुड़े हुए होठों और पेशानी पर फैली लकीरों से वाज़ेह थी। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सब से एक बात कहना चाहूँगी कि जो कोई भी यहाँ होने वाले कुछ अगले फ़ैसलों पर अमल करने की जुर्रत नहीं रखता वो अभी के अभी कदम फेर सकता है। कुतुब खाने की दाखिली तरफ मौजूद वसी मेज़ कुर्सी पर मौजूद अदूब ने सबको मुखातिब किया। कतार के बिल्कुल आखिर में खड़े फ़ातिर इस्लाम ने दीवार से टेक लगाई थी। बाजू सीने पर बंधे थे और आंखें एक सिमत चौकन्ना।
लेकिन यहाँ होने क्या वाला है? एक औरत ने झिझकते हुए इर्द गिर्द देखा। बता देने के बाद आप लोग ना यहाँ से पलट सकते हैं और ना ही बाहर जाकर किसी को यहाँ क्या हुआ था की मालूमात दे सकते हैं। उसूल को तोड़ने वाला नतायज का जिम्मेदार खुद होगा। वहाँ सभी को मालूम था अदब मलिका का सीधा बाजू है। वो मुजरिम के साथ क्या क्या करवा सकती है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। आपको लगता है लोग मान जाएंगे? गुल फातिर की तरफ झुकी, जिसने जवाबन शाह ने उचका दिए। गुल बेचैनी से एक पाँव मुसलसल फर्श पर मारती रही। कुछ देर मजमा खामोश रहा। एक दूसरे के चेहरे देखते वो जवाब मांग रहे थे। मौजूदा तादाद में से 2 या 3 अफराद माजत करते बाहर निकल गए। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो अनजाने को नज़रअंदाज करते हैं और दूसरा वो जो अनजाने की तरफ माइल होते हैं। हमने उनकी इसी तवज्जो का फ़ायदा उठाकर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है। गुलजान मुंह खोले फातिर को यूं देख रही थी जैसे पहली बार देखा हो। क्या? वो जो बेध्यानी में इधर उधर देख रहा था गुल के तासुरात पर ठिठक गया। आप बिल्कुल, वो दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करने लगी। मैं क्या? आप बिल्कुल अलमीरा जैसी बातें कर रहे हैं। एक नाम लेने की देर थी और फातिर इस्लाम के गाल कान तक सुर्ख हो गए। वो शर्मा गया। बाकी बच जाने वाली तादाद अब सर उठाए अदब को देख रही थी। मुस्कुराते हुए मशीर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आप लोगों ने एक बहादुर फैसला लिया है। हर कोई ये हिम्मत नहीं रखता। मुझे फ़ख्र है आप सब पर और हमारे कल पर। कुछ लोग अपनी तारीफ पर खुश हुए और कुछ अभी तक उलझे थे। आप जानते हैं इतने लोगों में से सिर्फ आप ही कुछ का चुनाव क्यों किया गया? गर्दनें नफ़ी में हिली। बहुत कम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। आप वो कुछ लोग हैं जो मौजूदा जुल्म को ख़त्म करेंगे। मुस्तकबिल के अमन की पहली ईंट हमारे हाथों बुनियाद में आएगी। अदब मेज़ पर झुकी इन सब को मुखातिब कर रही थी। हल्के गंदमी लिबास के बाजू ऊपर नीचे झूल रहे थे। हम 18वीं मलिका माह के जबर और निज़ाम को गिराने के लिए जमा हुए हैं। अदब के कहने की देर थी और मजमे में हड़बड़ी मच गई। लोगों में से कुछ के चेहरे पर खौफ आया तो कुछ लोग मुतासिर हुए। कुछ वहाँ से जाना चाहते थे और कुछ खुशी से झूमना। गुल हालात का रुख बदलता देख फातिर की तरफ पलटी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मर्द ने उसे हाथ उठाते रोक दिया। चेहरा फेर कर अदूब को देखा जो जहन में यकीनन कुछ दोहरा रही थी। ये क्या है? 2 दिन पहले फातिर ने उसे उसी कुतुब खाने में बुलाया था। अपनी तरफ बढ़ते कागजात को देखते अदूब ने सवाल किया। स्क्रिप्ट? अदूब उलझी और कागज़ थाम लिया। इसे याद कर लो, लोगों से यही जुमले बोलना, और कहीं मैं अटक गई या कुछ उन जवाबात से बाहर पूछ लिया तो। 3 से 4 कागजात को आगे पीछे करती वो मुनहमक थी। अपनी अकल है ना, या गिरवी रखाई हो, इस्तेमाल करना उसे। बिना उस पर नज़र डाले वो आगे बढ़ गया। अदब उसके बदलते रंगों की कभी आदी नहीं होगी। उसे सिर्फ मलिका ही संभाल सकती है। गर्दन झटकते खुद से कहा। गुल इस बात से नावाकिफ थी कि ये तैयार शुदा तकरीर फातिर के जहन की जरखेज़ी है। मैं जानती हूँ आप सबके जहन में अनगिनत सवाल होंगे। बेफिक्र रहे, सबका जवाब मिलेगा, मगर बारी बारी। अगर मलिका को तुम्हारी गद्दारी का इल्म हो गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। एक मर्द के सवाल पर अदब मुस्कुराई। फातिर ने फासले पर खड़े उसे बोलने का इशारा किया। मुझे अपने लोगों को जवाबदेह होना है, अपने सरबराह को नहीं। मेरी वफादारी मेरे मकाम से होनी चाहिए और वो मुझे ये पूरी इजाज़त देता है कि मैं गलत के अहकामात मुलतवी करूँ। सामने खड़ी एक नौजवान लड़की ने हाथ बुलंद किया। लेकिन हम इनकलाब लाएंगे कैसे? अदब ने फातिर को देखा। फातिर ने आंखें झपकते याद दहानी करवाई कि हाँ, इसका जवाब भी तुम्हें बताया गया था। गुली आंख में चोरी मशकूक अंदाज में देख रही थी। बाहम जमा करो। अकेले हम कुछ नहीं, मगर इकट्ठे हम वो दीवार है जिसे माह मलिका के मजबूत हथियार भी नहीं ढा सकते। सरगोशियाँ और चहमगोइयाँ यूं ही जारी रही। वो सब अब रुके बिना यूं ही जारी रहेंगी तब तब तक जब उनकी साजिश का इल्म ताज के वफादारों और उसूल परस्त मुनाफिकीन को नहीं हो जाता। ये अदूब हर सवाल पर आपकी जानिब क्यों देखती है? लोगों के हटते हुजूम के दरमियान गुलजान की आवाज़ पुस्त थी। क्योंकि मैंने ही इसके जवाब तैयार किए हैं। बिना उसे देखे फातिर ने टेक छोड़ी। मतलब, मैंने आज की मुलाकात की एक स्क्रिप्ट तैयार करके अदूब को दी थी। गुल आंखें झपकते उस मर्द की पुश्त देखती गई। बिना कदम इतना बड़ा नहीं था, मगर गुल के दिल में फातिर का तन्हा फैसला लेना किसी बर्छी की तरह खबा था। कब? फातिर जब पलटा तो उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। मैं प्राइमरी के बच्चे की तरह हर फैसले पर तुम्हारा ठप्पा नहीं ले सकता।
फातिर इस्लाम की तंज पर उसका गुस्सा पैर से सर के रुख को आया। अदूब इन दोनों से बात करने की मुंतजिर एक तरफ मौजूद थी। आगे जाते मर्द का कंधा पकड़ते दृष्टि से खुद की तरफ मोड़ा। अगर आप प्राइमरी के बच्चे होते तो मैं आपके फैसले पर नहीं बल्कि आपके मुंह पर थप्पा लगाती, वो भी लालच और खुदगर्जी का। कुछ देर के लिए अपनी अना को एक तरफ रख कर देखे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम दोनों साथी हैं और साथी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। गुलजान का बाकी जुमला अभी ज़बान पर ही था जब फातिर इस्लाम की कानों में बजने वाली हंसी कुतुब खाने की दरो दीवार ने सुनी। गुल की गिरफ्त उस हंसते मर्द के बाजू पर सुस्त होते हट गई। वहाँ खड़े पहली मर्तबा उसे अलमीरा की नफरत जायज़ लगी। अगर अब हम ऐसे छोटे छोटे फैसले बांटना शुरू हो गए तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। अपनी बात हंस कर ख़त्म करते उसने संजीदगी से गुलजान की दरस्त निगाहों में देखा। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो गुल। अगर तुम्हें लगता है ये तरीका हमारे लिए फ़ायदा मंद है तो वो इस्तेमाल करो, मेरी राय का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मुस्कुरा कर तसल्ली देते वो अदूब की जानिब पलट गया। भारी जर्रे में मौजूद उसका वजूद पत्थर का बुत था। हर बार उस पर कोई हंसकर चला जाता है, हर कोई उसकी हस्ती को रद्द करना आसान समझता है। गुलजान आखिर कब तक हर किसी की कहानी का मज़ाहिया किरदार बनती रहेगी? कब खुदा उसको भी सबकी निगाहों का मरकज़ बनाएगा? लातादाद शिकवे और हर दिन एक नई हसद। फातिर इस्लाम ने गलत लोहे पर ज़रब लगाई है। ये तकरीबन 2 दिन बाद का वाक़या था। सुबह से शाम वो तीर अंदाज़ी की मशक करती और रात के दूसरे पहर मलिका के मुखालिफिन कुतुब खाने में जमा होकर कदम उठाने की वक्त का इंतज़ार करते हुए फ़ैसले लेते। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था जब उस दिन गुलजान की ये खुशफहमी भी दूर हो गई। दोपहर का खाना खाकर वो गुस्ल खाने हाथ धोने की नीयत से आई जब अंदर से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। बेवकूफ़ है वो सब लोग, उन्हें लग रहा है कि मलिका के खिलाफ 2-3 नारे लगाएंगे तो निज़ाम बदल जाएगा। मलिका ने एक भी लम्हा ज़ाय किए बिना उनको कत्ल करवा देना है, कोई औरत दूसरी से हंसते हुए कह रही थी। गुलजान हमेशा की तरह कान लगाए सुनने लगी। अब कान में आवाज़ पड़ जाए तो उसका क्या कसूर? अच्छी भली मशीर की ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं वो बेवकूफ़ का इन कामों में क्यों लग गई। बहते पानी के दरमियान अभी भी वही औरत बोल रही थी। मुझे तो लगता है वो ये सब किसी की शय पर कर रही है। गुलजान का दिल एक लम्हे को डगमगाया। इस बात से सब लाइल्म है कि ये बगावत के इरादे अदूब के अपने नहीं, तो फिर शक किस बात से हुआ? अज़ल से अबद तक यही होता आया है। भला जालिम ने भी कभी मजलूम की सुनी है? अपने गीले हाथों को झटकते वो अब अपनी साथी के हौसले पुश्त करती बाहर आ रही थी। गुलजान फौरन से साथ बनी सीढ़ियों पर छप गई। अच्छी भली हमारी ज़िंदगी अय्याशी में गुजर रही है, छोड़ छोड़ इन मर्दों को, मगर वो भी तो इंसान है। दूसरी औरत का लहजा कमज़ोर था। दलील मजबूत दुनिया का निज़ाम है बेमानी। दलील भी अगर पुरएतमाद लहजे में दो तो कम अज़ कम 4 लोग अमल ना सही सुनेंगे ज़रूर। उन इंसानों का ये ऊपर ऊपर वाले सोचे, हमें क्या गर्ज? ऊपर वाले नहीं सोच रहे तभी तो हमें सोचना है। बहुत ही कोई कम अक्ल हो तुम। एक औरत अभी भी दूसरी को समझाते हुए खामोश होने का मशवरा दे रही थी। गुलजान आहिस्ता से अंधेरे का रास्ता छोड़ती रोशनी में आई। उसे ये खुशफहमी क्यों होने लगी कि यहाँ सब उसके इरादों के मुताबिक चलेगा? क्या यहाँ के लोगों की भी इंसानियत मर चुकी है? हल्की आवाज़ में खुद से सवाल किया। मारनी पड़ती है, जवाब पर वो घबरा कर पलटी। कुमारी अपने सुनहरी लिबास में हमेशा की तरह पथरीले तासुरात से उसे देख रही थी। मतलब जिंदा रहने के लिए इंसानियत मारनी पड़ती है। गुल के चेहरे पर इख्तलाफी राय साफ लिखी थी। ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ इंसान दूसरे के दुख दर्द से कान लपेट ले? कुमारी ने यह वस्ता निगाहें अपनी शागिर्द से मिलाई। गुल के जुमले पर भी तासुरात में दरार न आई। ये सवाल मैं बहुत जल्द आपसे भी करूंगी मुहाफिज खास। आम से लहजे में बहुत ख़ास बात कहते वो आगे बढ़ गई। कुल हक्का बक्का कुछ देर पहले के मनाजिर पर गौर व फिक्र करने लगी। पीछे खड़ी वो सिपाही अपने उस्ताद की वजूहात की मुखालिफ थी और मुखालिफ ही रहेगी। रोज़ की तरह अदूब और अवाम से मुलाकात करने के बाद वो दोनों रात की स्याही में अगले मंसूबे तय करते थे। आज भी जलती लालटेन के गिर्द एक किताब और 2 कहवे की प्यालियाँ मौजूद थी। जब किसी लड़की के सफ़ेद लंबे हाथों ने किताब के सफ़ात दुरुस्त किए, नाखूनों पर लगा सियाह रंग तकरीबन मिट चुका था। आपको अदू पर भरोसा है? लालटेन की रोशनी का अक्स उसके चश्मों पर बन रहा था। किस हवाले से? फातिर इस्लाम कहवा पीते गुलजान के मसरूफ़ हाथों को देख रहा था।
यही कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। हो भी तो सकता है वो निगार के साथ मिली हो। जानते हैं ना, निगार को हमारे इरादों का इल्म हुआ तो वो एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना हमें मरवा देगी। गुल अपनी वहम और वसवसों पर चलने वाली आदत से मजबूर खौफ से बोली, निगार अदूब को नापसंद करती है, ये कोई इतनी बड़ी वजह तो नहीं। गुल के कहने पर फातिर ने बेजारी से नाक चढ़ाई। आप कामिल को नापसंद करते हैं मगर उसकी मदद ले रहे हैं। हो सकता है निगार ने अदूब को भी कुछ ऐसे ही ख्वाब दिखाए हो। फातिर की गिरफ्त प्याली पर जामिद हुई। गुलजान की बात में वजन था। अदूब को किस चीज़ की कमी अदूब को किस चीज़ की कमी? आंखें चुराना आसान था मगर ये मानना मुश्किल कि सामने वाला भी दुरुस्त हो सकता है। लालच तो हर इंसान के खून में होती है सर। फातिर को यूँ लगा जैसे गुल उस पर तंज कर रही हो। फजूल कयास आराइया लगाने की बजाय अगर तुम यहाँ से निकलने का सोचो तो हम दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सामने बैठी लड़की ने बोलने के लिए लबवा किए जब फातिर ने हाथ उठाते उसे रोक दिया। हमारा मंसूबा बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें रद्दोबदल मत करो। सिपाही बोलने से भी दंग रह गई। वो दोनों एक ही मंजिल पर रवा थे। फिर ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जैसे एक हुक्म सुना रहा हो और दूसरे के लब सिले थे। और फातेह जैसा मर्द वो तुम्हें एक नज़र भर कर देखेगा भी नहीं। खुद पसंद आदमी के पीछे तुम मुझे मुलजिम ठहरा रही हो। तुम लोगों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और जवाबन मुझे क्या मिला? लानत, मलामत, नफरत। पस मंज़र में उसे एक हुजूम खुद पर हंसता महसूस हुआ। अलमीरा के अल्फाज पलटकर किसी तमाचे की सूरत लगे थे। क्या वो गलत इंसान का साथ दे रही थी? बाब मलिका। 4 दिन बाद उनकी मेहनत कामयाब गई। पहली मरतबा अलमीरा अनजान रही और फतेह उनके नसीब का हिस्सा बनी। अदूब और अबील की क़यादत में चली आती मलिका की तैयारी रोज़ की तरह बिना किसी रोक टोक के कीमती थी। सुरमई मोतियों से बना साड़ी नुमा लिबास जिसकी एक तरफ मखमली कपड़ा होकर गुजरता, उसकी मुख्तसर सी जालीदार पोशाक के नीचे से बहता रहा था। ताज वाला सर आज दुपट्टे से खाली था, जबकि कानों और गर्दन में बेश बहा सुरमई मोती चमक रहे थे। गर्मी होने के बावजूद भी वो यूँ तैयार होती थी जैसे रिश्तेदारों के सामने दिखावा करने के लिए निकली हो। गर्दन सीधी और उठी हुई उसके मकाम के मुताबिक थी। माह निगार ने तमाम वज़रा की मौजूदगी में अलमीरा से कुछ अहम बात करने के लिए उसे दरबार में अर्ज़ किया था। मुलाकात की तरफ बढ़ते कदम रवा थे जब दरबार के अंदर से फातिर इस्लाम बाहर आया। अलमीरा का चेहरा हूबहू वैसा ही मगरूर था। फातिर इस्लाम का चेहरा भी बेतासुर था। दोनों में से किसी एक ने ना नज़र मिलाई और ना एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाया। फातिर दरबार से दूर जा रहा था। अलमीरा के कदम दरबार की जानिब थे। दोनों के रास्ते रूबरू आए। फातिर इस्लाम दूर चला गया। अलमीरा इनायत आगे बढ़ गई। बस एक लम्हे को दो दिल बेइख्तियार होकर शिद्दत से धड़के थे, लेकिन यहाँ कदम आगे उठा, वहाँ दिल की बेरबाती काबू हो गई। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अलमीरा इनायत मोहसिन को लोगों की कमी नहीं है। खुद से ये कहते वो दरबार के दरवाजे के सामने रुकी। दूर जाते फातिर ने तजस्सुस से मजबूर चेहरा जरा फेरा। जो भी था जैसा भी था, कम अज कम वो उसे नज़रअंदाज तो नहीं करती थी। ज़मीन ने भी इख्तियार कहा कि आज आवाज़ देकर रोक ले, तंबीह कर दे, लाइल्मी को ख़त्म करके अलमीरा को बता दे कि अंदर दरबार में उसकी बर्बादी मुतवक्का है। बोलने के लिए होठ जुदा किए मगर आवाज़ ना निकली। निकल ही ना पाई। वो कोशिश के बावजूद भी उसे कुएं में ढकेलने से रोक ना सका। वही कुआं जिसकी खुदाई में फातिर इस्लाम पेश पेश था। मलिका के दाखिल होने पर आज बहा से एहतराम कोई भी वजीर न खड़ा हुआ। सुरमई लिबास वाली औरत चौखट पर ही ठहर गई। आंखें छोटी करते उसने माहौल का जायजा लिया। फिजा संजीदा और संगीन लग रही थी। खादमा अबील, आपको इल्म नहीं, जब मलिका दरबार में आ जाए तो बुलंद आवाज़ में इतला करते हैं। अलमीरा अपना लिबास संभालते तख्त की तरफ बढ़ने लगी। मलिका सल्तनत में औरतें खादिमा नहीं होती। तख्त के करीब खड़ी निगार आगे आई। अलमीरा के कदम अस खुद रुक गए। अलमीरा ने उसकी बेबाकी पर बाकियों को देखा। किसी ने ना नजरें चुराई और ना ही निगार को टोका। ढेर सारा थूक निकलते अलमीरा उसकी एक तरफ से होते आगे बढ़ने लगी, जब निगार दीवार बनकर वहां भी रुक गई। मैंने यहाँ आपको बात के लिए बुलाया है, बिठाने के लिए नहीं। अंदर ही अंदर उसे निगार पर गुस्सा आ रहा था, मगर बज़ाहिर पुरसुकून रहते उसने मजाकन कहा, लोग घर आए मेहमान को भी बिठा कर बात करते हैं, मैं तो फिर मेज़बान हूँ, हटो रास्ते से। लेकिन अगर वो मेहमान आपकी पीठ पर छुरा घोंपने की मंसूबे बुन रहा हो तो घर के करीब भटकने के काबिल भी नहीं छोड़ते। अभी लोग उसकी खुश मिजाजी को नज़रअंदाज करते
पीछे से बोली। अलमीरा को झटके पर झटके लग रहे थे। मदद की नीयत से अदूब को देखा। उसके दाएं बाजू ने भी ज़मीन से नज़र ना उठाई। आज अलमीरा को हकीकतन इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कोई किसी का नहीं। खुश्क लबों को आपस में मिलाते वो कदम कदम चलते कमरे के वसत में आई। यहाँ से सारी औरतें और एक दो मर्द उसके गिर्द गोल दायरा बनाए मौजूद थे। अलमीरा ने आहिस्ता से चक्कर काटते सबको देखा। अब ये भी बता दो मुझ पर इल्ज़ाम क्या लगाया है? मशीर खास अदूब। निगार के पुकारने पर नारंगी बालों वाली औरत ने चेहरा उठाया। चिरागों की रोशनी में उसके बाल सुनहरी लगे। मलिका, बताएं मलिका ने क्या बगावत की है? अदूब आगे आते निगार के ऐन सामने खड़ी हुई। अलमीरा का वाहिद सहारा भी मुखालिफिन की सिफ में जा खड़ा हुआ। पूरी उम्र इंसानों के नाम वक़्फ़ करने वाली औरत को आखिर में हासिल क्या हुआ? तन्हाई। मलिका माह के अहकामात पर मैं और मुझ समेत कुछ वज़रा, सिपाही और मुलाज़मीन लोगों को मलिका के निज़ाम के ख़िलाफ़ कर रहे थे। मलिका के कहने पर ही हमने पैगामात बांटे, मुलाकातें मुनक्किद की और लोगों को ये एहसास दिलाया कि उन्हें अपने खिलाफ होने वाली ज़्यादती के लिए बोलना होगा। अलमीरा के होंठ तंज़िया मुस्कुराई। ये ज़िल्लत, ये रुसवाई उसके नसीब में लिखी थी। ना चाहते भी उसे दुख ना हुआ, बल्कि अपनी बेबसी पर हंसी आई। कौन सी ज़्यादती कर दी माह मलिका ने जो लोगों को बेदार करना पड़ा? एक वज़ीर ने नफ़रत से अलमीरा की जानिब देखते सवाल उछाला। मैं नहीं जानती, मैं बस मलिका के अहकाम बजा ला रही थी। अदूब का दिल डगमगाने लगा। एक लम्हे के लिए भी अलमीरा से नज़रें मिलाने की हिम्मत ना हुई। ये सब वो फातिल के कहने पर कर रही थी। कुछ अदूब एहसास जुर्म के साथ नहीं जीना चाहती थी और कुछ उसकी अपनी लालच। ताकत किसे अजीज नहीं। आप इस बारे में क्या कहेंगी मलिका? निगार के पुकारे जाने पर अलमीरा ने अपने हाथों को देखा। जलन अब गायब हो चुकी थी। महंगी कीमती अंगूठियों को देखते उसने गहरी सांस अंदर खींची। कमर अकड़ाई और कंधों को दुरुस्त करते दूर खड़ी अपनी बहन की आंखों में आंखें डाली। अदूब से पूछो, मुलाकातें कब कब रखी गई थी? इन मुलाकातों में मलिका कभी नहीं थी। अदूब हमारी सरबराह थी। वही आवाज़, वही पतली कानों में चुभने वाली आवाज़ जिसे अलमीरा को अपने इर्द गिर्द सुने न जाने कितने दिन गुजर गए थे। वही आवाज़ उसकी पुश्त पर सुनाई दी। उसकी आंखों का सियाह रंग खौफ से फैलने लगा। दिल की धड़कन मद्धम हुई और वही खून ने भी गर्दिश करना सुस्त कर दी। मलिका इन तमाम मुलाकात के दौरान या तो भमन से मुज़ाकरात करने में मसरूफ़ थी या माह निगार के साथ जंग की हिकमत अमली बनाने में। फातिल इस्लाम न जाने दरबार में कब आया। ये इसीलिए था ताकि कोई अहम मकामात पर उनकी गैर मौजूदगी देख कर शक में मुब्तला ना हो। कदम कदम चलते वो अब अलमीरा के दाएं जानिब कंधे से कंधा मिलाए निगार से मुखातिब था। उसके कहने पर मशीर खास निगार ने अलमीरा की तरफ यूँ देखा जैसे कह रही हो, आप क्या कहेंगी? अलमीरा क्या कहती? उसका तो वजूद पत्थरों की थाल तले दब चुका था। जिस झूठ के घर पर हमेशा फातिल इस्लाम ज़रबे लगाता था, आज उसी मर्द की एक फूंक ने घर ज़मीन बोझ कर दिया। ये इल्ज़ाम है? घुटी आवाज़ आखिर में बुलंद हुई। उसका सारी तमानियत, गुरूर, इत्मीनान, खौफ और घबराहट में ढल गया। अलमीरा इनायत मोहसिन आज से घबराएगी। हमारे पास गवाह है जिन्हें मलिका ने बजाते खुद इस साजिश पर उकसाया था। अलमीरा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते फातिल की तरफ देखा। वो उसे बोलने से रोकना चाहती थी। वो कमरे में कोई आवाज़ नहीं चाहती थी। आज से अलमीरा इनायत मोहसिन खामोशी के लिए तड़पेगी। यही है वो तमाम लोग जिन्हें मलिका बगावत के लिए तैयार किए बैठी थी। अदूब के कहने पर दरबार का दरवाज़ा खोला गया और एक एक करते तकरीबन 30 से 40 अफराद अब कमरे के अंदर मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन आधों को तो वो ये देख ही आज पहली बार रही थी। अलमीरा ज़ेरे लब ये सब रोकने का कह रही थी। आज से अलमीरा इनायत मोहसिन इंसानों में अपनी बैसाखियाँ तलाश नहीं करेगी। मैं मलिका का वफादार था। मलिका मुझे बगावत के लिए मायल कर रही थी, मगर जब मैं रजामंद ना हुआ तो उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि बीच महफिल में आकर अपने रुतबे से दस्तबरदार हो जाऊं। अलमीरा का चेहरा कभी उदास होता, कभी हमदर्द, कभी बेबस तो कभी मुतासिर। उसे लगता था कहानियाँ बनाना सिर्फ उसका फ़न है। फातिल इस्लाम तो सदी का सबसे बड़ा अफसाना निगार निकला। आज से अलमीरा इनायत मोहसिन फ़रेब करने से पहले 10 बार सोचेगी।
कुमारी अलमीरा फातिर का चेहरा देखकर रह गई। ये इस आदमी का चेहरा नहीं था जिसने उसके गढ़ते वजूद को सहारा दिया था। ये उस आदमी की आंखें नहीं जो उसकी झूठी शख्सियत पर मातम करती थी। ये उस आदमी के अल्फाज नहीं जो उसे बेहतरी की तरफ बुलाते थे। ये फातिर इस्लाम नहीं, ये कम अज़ कम उसका खादिम खास नहीं। माह मलिका की रिवायत के मुताबिक मलिका को सब माफ़ है, बस एक बगावत नहीं। निगाह सीढ़ियाँ उतरते बाआवाज़ बुलंद कह रही थी। अलमीरा इनायत मोहसिन की तवज्जो अभी भी साथ खड़े मर्द में शनासाई की कोई निशानी ढूंढने में थी। 18वीं माह मलिका से बगावत के जुर्म और तख्त के खिलाफ साजिश करने की सज़ा में ताज छीना जाता है। कुमारी ले जाओ इसे। आगे आते नीली सियाह आंखों ने बेदर्दी से उसके बालों में लगा ताज खींच लिया। दस्त से सख्ते उसने अपनी बहन को देखा। इससे पहले कि वो कोई जवाबी वार करती, कुमारी ने पीछे से आते मलिका के हाथ बेड़ियों में कैद कर दिए। आदत के बरखिलाफ उसने ना इस बार एहतजाज किया ना मज़ाहमत। फातिर इस्लाम को 6 साल पहले का मंजर याद आया। मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसा रहे हैं, मैं बेगुनाह हूँ। वो ड्रग्स मेरी नहीं किसी और की होगी, मैं नहीं जानती कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसे देख रहे हो, तुम लोगों के पाकीज़गी के किस्से मैंने खोले तो यहाँ हर एक अपने कानों को हाथ लगाएगा। अलमीरा को बाजुओं से खींचते दूर ले जा रहे थे। सारा किला तमाशा देखने के लिए जमा था, मगर वो जो तमाशा बनी थी वो चेहरा उठाए बस एक सिमत देख रही थी। फातिर इस्लाम को महसूस हुआ ये शायद आखिरी मर्तबा है जब वो अलमीरा को देखे। इस एहसास ने उसके अंदर अजीब सी मायूसी भर दी। एक आखिरी लफ्ज़ देख लेने में कोई कोताही एक आखिरी नज़र देख लेने में कोई कोताही तो नहीं। उस इंसान की बर्बादी देखने में क्या बुराई जिसे आप इस दुनिया में सबसे काबिल नफरत समझते हो। पहली बार उसने अलमीरा को औरत नहीं इंसान कहकर मुखातिब किया। कमर पर हाथ बांधे खड़े आदमी ने जज्बात के हाथों मजबूर होते दाई तरफ देख ही लिया। नहीं देखना चाहिए था। पहला ख्याल ही इतना संगीन उभरा कि वो निगाह भी ना फेर सका। सब्ज भूरी और सुनहरी आंखें आज आखिरी मर्तबा रूबरू आएंगी। चिराग की रोशनी तले उसने इस आखिरी मंजर को कैद कर लिया, कभी ना आगे बढ़ने के लिए। दूर जाती बेसहारा औरत के चेहरे पर आज न तनफुर था, ना अना, ना बदला, और ना ही हिकारत। कामिल ने कहा था फातिर का धोखा उसे तोड़ देगा। अलमीरा इनायत मोहसिन के चेहरे पर कर्ब था, करची करची हुए वजूद पर मातम करता शिकस्ता कर्ब। जिस आदमी ने एतमाद सिखाया था आज उसने तोड़ भी दिया। अलमीरा ने दरबार का दरवाज़ा पार किया। फातिर इस्लाम ने भी वहीं कहीं चौखट उसके साथ तय की। दरबार में खड़ा तो ये आदमी बस अब पछतावे का पुतला था जिसकी अनापरस्त रूह अलमीरा अपने साथ ले गई। पहली मर्तबा भी उसे कैद में धकेलने वाला यही शख्स था और दूसरी मर्तबा भी उसे फातिर ने ही कैद किया। कदम कहाँ उठाकर रखे जा रहे थे, अब परवाह किसे थी। खुद का असल छुपाकर उसने झूठे ताल्लुकात बनाए जो आज उसका मकाम और हैसियत को बचाने में किसी काम ना आए। फरेब में सांस लेने वाले शख्स के साथ फरेब करो तो उसका खुद का दम घुटने लगता है। फातिर ने भी अलमीरा के साथ यही किया। एक निस्बतन खामोश अंधेरी बदबूदार और तंग सी राहदारी में वो कुमारी और एक चुकानशीन के साथ चलती आ रही थी। बदबू उसके आसाब पर भारी थी। लिबास गर्द आलूद हो चुका था, मगर ख्याल किसे था। राहदारी के इख्तिताम पर एक सलाहदार कमरा था। अगर इस दूसरे इंसान के हाथ में दिया ना होता तो पाँव कहाँ रखना है ये भी नहीं दिखता। दरवाज़ा खोलते साबिका मलिका को धक्का देते सलाखें बंद कर दी गई। ना उसने मदद की भीख मांगी, ना कोई सिफारिश की। खामोशी से अपनी किस्मत कबूल कर ली। तुम आग से खेल रही हो अलमीरा, और आग से खेलने वाले हमेशा जलते हैं। आग से खेलने वाले आग से बने होते हैं। काल कोठरी में उसे पहली आवाज़ अपनी भूली दोस्त की आई। अलमीरा ने हमेशा ज़ेबा का इस्तेमाल किया, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर फ़ख्र किया, और आज वो कहाँ है और ज़ेबा? वो यकीनन अलमीरा के साए से महफूज खुश होगी, होना भी चाहिए। पूरी उम्र वो आग से खेलती आई थी और आज आग ने उसी का सारा खेल जला दिया। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठते वो सलाखों से बाहर देखने लगी। अंदर एक तरफ पानी का मटका, चादर और अध खाने की प्याली रखी थी। यूँ लगता था किसी को अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से ले जाया गया हो। खुश्क आंखें बंद की और चेहरा उठा लिया। उसे गर्मी लग रही थी। एक एक करते अपने जेवरात और पोशाक से खुद को आज़ाद करती उसने सुकून का सांस लिया। पानी की तलब हुई तो मटके की तरफ बढ़ी। गर्म खारे पानी ने उसके मुंह का जायका ख़राब कर दिया। मुलाजिम को आवाज़ देने के लिए लब जुदा किए जब याद आया कि अब ना मुलाजिम रहे ना मलिका।
अलमीरा आंखें बंद करती उस चादर पर लेट गई। जब एकदम आंखों के सामने माँ का चेहरा नजर आया, मुस्कुराते हुए उसने उस गैर हकीकी मंजर को जागती आंखों से देखा। वो उसकी तरफ देखती मुस्कुरा रही थी। उनके घर का किचन था, गर्मियों की धूप और सिंक के गंदे बर्तन उसकी माँ के साबुन से लेस हाथ में थे। अल्लाह साबरीन के साथ है। माँ के मुंह से निकलने वाले जुमले ने उसे सीधा उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। दिल इस कदर जोर से धड़का था कि पसली तोड़कर बाहर आ जाए। हाँफते हुए उसने कुछ देर गहरी सांसें ली। यानी खुदा उसके साथ नहीं था। उसने लालच की, हमेशा की, तो खुदा उसकी माँ के साथ भी तो नहीं था, जिसने बस सब्र किया और कुछ नहीं। इंसानों ने सब्र और खामोशी की तारीफें आपस में मिला दी है। सब्र करो लेकिन आगे बढ़ना खुदगर्जी है। सब्र करो और रुक जाओ, हिमाकत है। इन लोगों का क्या जो अहमक कहलाने से बचने की खातिर खुदगर्ज होना मुंतखब कर ले। उसकी माँ भी अपनी जगह गलत थी, जो ज्यादती के खिलाफ बोली नहीं, और अलमीरा अपनी जगह गलत, जिसने ना कभी दिल से अपनी इज्जत की और ना किसी और की। उसकी माँ ने बर्दाश्त के नाम पर अपनी जान दे दी। अलमीरा ने अपनी जान की खातिर दूसरों की बर्दाश्त खत्म कर दी। दोबारा से चादर पर लेटते उसने आंखें बंद कर दी। ये पछतावे अब कभी खत्म ना होने के लिए उसके साथ चिमट चुके थे। दीवार की तरफ करवट बदलते उसने अपने हाल पर गौर किया तो उसे अंदाजा हुआ वो आज से नहीं, हमेशा से खसारे में थी। फातिर इस्लाम इन खसारों में वाहिद मुनाफा था। जिसने भी आखिर में उसे धोखा दे दिया। अलमीरा उसे कोसना चाहती थी, नहीं कर पाई। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जो बोया था वही काटेगी, और इस मर्तबा कसूरवार बस वही है। बाब मुनस्सिफ हाल में मौजूद तमाम लोग आज एक नई फिजा में सांस ले रहे थे। सूरज के निकलने और ढलने का इल्म सिर्फ किले की छत पर मौजूद सुराखदार जाली से लगाया जाता था। इस वक्त गुरूब होते सूरज की कच्ची सुनहरी किरणें इस जाली से फूट कर आती एन ईंटों के दरमियान में अपना रंग बिखेर रही थी। दबीर अलसाजार एक तरफ नातवा हालत में बेसहारा बैठा था। हाथ सामने लटके थे, जिनमें से एक में बंधी बेड़ियां साथ खड़ी सिपाही के हाथ में थी। 10 दिन की इस कैद ने ताकत निचोड़ कर रख दी थी। आंखों के गिर्द खड्डे और इस कदर गहरे हो गए कि उनके भूरे रंग और हल्कों के रंग में फर्क करना मुश्किल होने लगा। माजी आज खुद को एक मर्तबा फिर दोहराता है। 18वीं मलिका माह अपने ही मुल्क का सौदा किए हमारे साथ जी रही थी। दरअसल लीबियाई हुकूमत की कैद से वो भाग कर नहीं, बल्कि अपने लोगों के एतबार को गिरवी रखवा कर आई थी। माह निगार बुलंदी पर बने चबूतरे से सबको देख रही थी। हाथ लाठी से खाली थे और एक तरफ अलमीरा का ताज गद्दी पर अकीदत से मौजूद था। पहली और दूसरी मंजिल में तमाशबीन 10 दिन पहले की तरह जमा थे, बस आज हाकिम कोई और था। मलिका माह कोई मलिका नहीं, बल्कि लीबियाई जासूस थी। निगार के इस इंकशाफ पर कई लोगों की सांसें थम गई। मुलाजमों की फौज में खड़े फातिर इस्लाम ने इस कहानी पर अलबत्ता कोई रद्द अमल ना दिया। झूठ के खिलाफ बोलने वाला आदमी अलमीरा के साथ ही तहखाने में कैद था। चुनांचा रस्म रिवायात को मद्देनजर रखते साबिका मलिका की सज़ा का इंतखाब नई आने वाली मलिका करेंगी। चबूतरे पर आगे पीछे चलते उसकी आवाज़ खामोश दालान में गूंज रही थी। चबूतरे के बाएं पर मुलाजमीन की फौज थी, जबकि दाएं पर तमाम तख्त के खैर ख्वाह और फसील बैठे थे। माह कामिल की मसरूर निगाहें कब से एक सिद्ध में देखते फातिर इस्लाम पर ठहरी थी। बहुत सोच समझ के बाद हम इस नतीजे पर निकले हैं कि अगला सरबराह तख्त के असल हुक्मरान को बनाया जाए। वो रुक रुक कर अपनी आवाज़ को बुलंद रखे सबसे मुखातिब थी। जुर्रिये वाले चेहरे पर बस उसूल परस्ती दिखती थी। अगली मलिकाए माहे रुके रुके रुके। भीड़ में से कुछ आवाज़ों ने निगार का जुमला काटा। सब लोग आवाज़ों के ताक़ुब में इधर उधर देखने लगे। जब कुछ देर बाद हॉल के एक रश वाले कोने में से 2-3 लोग मुश्किल आगे आए। उनकी फूलती सांसों से लगता था वो भाग कर आए हैं। रुक जाए। घुटनों के बल झुकते वो यूनुस था। उसके साथी लड़के के हाथ में एक मोटी किताब, जबकि उनके पीछे बैठे बच्चे के हाथ में ऐसी 2-3 और किताबें थीं। चबूतरे के पीछे मौजूद सिपाहियों के सिफ में से गुलजान ने फातिर को देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में बसात उल्टाने का इशारा किया और निगाह फेर ली। माह कामिल की निगाह से ये इशारा बाजी ओझल ना रही।
خطرے کی گھنٹی بہت قریب سے بجنے لگی۔ دربار کے درمیان بنا اجازت بولنے کی سزا جانتے ہو؟ ماہ نگار نے ان 3 لڑکوں کو ڈرانا چاہا۔ ماہ ملکہ کے قانون کے مطابق اگر گدی کسی نشین سے خالی ہو تو عام اصولوں کو توڑنے پر سزا واجب نہیں۔ یونس نے سانس بحال کرتے کہا، یہ یہاں اس کتاب میں درج ہے۔ ساتھ والے لڑکے نے موٹی کتاب کا ایک ورق سامنے کیا۔ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی ادوب کا دل کسی بھی لمحے باہر آ سکتا تھا۔ چہرہ اٹھاتے اپنے ساتھی کو دیکھا۔ فاتر اسلام نے مروت میں بھی اس سے نگاہ نہ ملائی۔ ادوب کا دل کچھ اور شدت سے دھڑکا۔ یہ سب ان کے منصوبے کا حصہ تھا یا ماہ نگار کی کوئی چال؟ جھوٹ کی دلدل میں قدم رکھنے کے بعد انسان ہر لمحہ حقیقت کو لے کر شک میں رہتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پیچھے بیٹھے بچے نے ایک کتاب یونس کی طرف بڑھائی۔ اس نوجوان لڑکے کو کتابوں سے لگاؤ تھا۔ فاتر یہ بات جانتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا یہ اپنے کھیل میں اسے کون سا پیادہ رکھنا ہے۔ یہاں اس کتاب کے حصے ششم میں جو ملکہ کی غیر موجودگی کے دوران قوانین لاگو ہوں گے، ان میں سے آخری اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ گلا کھنکارتے یونس ہال کے بیچ میں آیا۔ سورج کی روشنی اب مکمل غائب ہو چکی تھی اور شام کے ڈھلتے سائے اس پر سایہ دار ہوئے۔ کوئی بھی تخت نشین، خواہ وہ ارادی یا غیر ارادی طور پر تخت کو خیر آباد یا اس سے بغاوت کر کے بھاگا ہو، وہ ہر ممکنہ یا غیر ممکنہ صورتحال میں دوبارہ تخت سنبھالنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یونس کے جملے کی گونج نے بے شمار چہروں کا رنگ نچوڑ لیا۔ فاتر اسلام گردن جھکائے مسکرا رہا تھا۔ اسے یہ اصول حرف بحرف یاد تھے۔ آخر کو کتابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی اسی نے ہی تو کی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ماہ کامل اپنی جگہ سے اٹھتے یونس کی طرف بڑھی۔ اس دن میں واپس آؤں جب المیرا اور فاتر کتب خانے میں ملیں گے۔ اس ساری ملاقات کے دوران المیرا کو لگ رہا تھا فاتر اسلام اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ حقیقتاً وہ وہاں موجود تمام قوانین کی کتابوں کو جمع کرتے ترتیب دے رہا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بیشتر کتابوں میں خالی صفحے اور سطور موجود تھی۔ شاید ماہ ملک کا والے اسی کی خدمات کے منتظر تھے، تبھی تو انہوں نے اتنے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ تو صرف اپنے خادم ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ واپس حال میں آؤ۔ کامل اب یونس سے کتاب لیے کھول بند کر رہی تھی۔ چہرہ لمحہ بلمحہ تاریکی کی طرف جا رہا تھا۔ اگر فیصلے قانون کو دیکھ کر ہوئے ہیں تو میری رائے ہے کتابوں سے بہتر ہمارا کوئی رہنما نہیں۔ فاتر نے کہتے ساتھ باقیوں کی حامی کا انتظار کیا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور بازی مکمل پلٹ گئی۔ اب گیند فاتر اسلام کے ہاتھ میں تھی۔ لوگوں کا مجموعہ نگار کے بجائے کتاب کے فیصلے لینے کے ساتھ ہوا۔ کتاب واقعی انسان کی بہترین ساتھی ہے، گل نے خوش ہوتے سوچا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ کامل کتاب زمین پر پٹکتی چلائی۔ وہ اتنی اہم چال کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ یہ اصول تم لوگوں نے بنائے ہیں، تم لوگ جھوٹے ہوئے۔ پھر کہیں سے کسی کی ضعیف مگر سخت آواز سنائی دی۔ دیکھتے دیکھتے آوازوں میں اضافہ ہونے لگا، 1 سے 4، 4 سے 11 اور دیکھتے دیکھتے ساری عوام بس ایک ہی رٹ لگائے اکٹھے تھے۔ قانون کا استعمال کرو۔ ماہ کامل نے پلٹ کر فاتر کو دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس آدمی نے بھی باقیوں کے ساتھ نعرہ لگایا، تم نے ہی مجھے دھوکے کے راستے پر چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں المیرا کو توڑ دیتا اور تم پیچھے بچ جاتی۔ خود کی شرمندگی کم کرنے کے لیے اس کے پاس اب یہ سودے بازیاں ہی بچی تھی۔ ماہ کامل نے فاتر سے نگاہ ہٹاتے بلندی پر موجود اپنی بہن کو دیکھا۔ نگار کا چہرہ خالی تھا، نہ وہاں خوشی تھی اور نہ ہی خوف، بس لا تعلق سا سناٹا تھا۔ جیسے ماہ کامل کو پتھروں تلے دفن بھی کر دیا جائے وہ بے پرواہ رہے گی۔ شہد رنگ آنکھیں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ نیلی سیاہ آنکھیں کچھ دن پہلے کا منظر دہرانے لگی۔ لوگ ابھی بھی اپنی مانگ پر ثابت قدم تھے۔ قانون کا استعمال کریں، قانون کا۔ آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا، ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ صلح پسند ادوب نے آگے آتے عوام کو قابو کرنا چاہا، مگر جوش میں آئی عوام کہاں کسی کی سنتی ہے۔ تم سابقہ ملکہ کی پالتو ہو، تمہاری کون سنے؟ جن لوگوں کے لیے اس نے دھوکہ دہی کو سینے سے لگایا تھا، اب بھرے مجمع میں وہی اس پر تہمت لگانے لگے۔ ادوب کی خود اعتمادی ختم ہونے کو تھی۔ فیصلہ ابھی ہوگا۔ لوگوں کے نعرے بلند ہوئے تو کچھ لوگوں نے اپنی ایک نئی خواہش کا اظہار کیا۔ عوام پانی کی طرح ان کے ساتھ بہتی گئی۔ ادوب نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ فاتر اسلام اور گل باہم اکٹھے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ وہاں کھڑے اس پر پہلی مرتبہ ایک انکشاف ہوا، وہ تینوں تکون نہیں تھے۔ فاتر اور گل لکیر کے دو سروں پر تھے، جبکہ ادوب تو بار سے ہی باہر تھی۔
इसे इस्तेमाल किया गया था। आंखों के गोशे नम होने लगे, खुद एतमादी बिखर गई। किताब क्या कहती है? सिपाहियों में से एक ने यूनुस से कहा। आगे बढ़ते उस लड़के ने ज़मीन पर पड़ी किताब उठाई और सफ़ात पलटने लगा। फातिर इस्लाम ने ही यूनुस को आज कुतुबखाने भेजा था। यहाँ अलमीरा दरबार में गई, वहाँ वो भागता हुआ बावर्ची खाने में। हमें कुतुबखाने की सफाई का हुक्म मिला है। आटा गूंथता लड़का ठहर गया। ठहरा तो पीछे खड़ा नजफ भी था। हमें? हाँ हमें, अभी चलो। यूनुस के हाथों को दूर हटाते उसके अंदाज की बेसब्री वाज़ेह थी। खादिम खास। नजफ की पुकार पर वो रुका। कुछ देर वो फरहबा आदमी खामोश रहा। शुक्रिया। इस 1.5 महीने की जहन्नमी कैद में फातिर ने पहली मर्तबा उस अधेड़ उम्र आदमी के होठों को मुस्कुराते हुए देखा था। तशक्कुर के इस छोटे इजहार ने ही उसका दिल ममनूनियत से भर दिया। वो इतना भी गुनहगार नहीं था। कुतुब खाने आते वो जानबूझकर अपनी तब्दील शुदा किताबें यूनुस को थमा रहा था। कहीं 1-2 बार उसे किताब का वही वर्क उसके कदमों में गिराना पड़ा ताकि वो मोटी अकल वाला उसका इशारा समझ जाए। देर लगी थी मगर देर हुई नहीं। मिल गया। खुशी से झूमते उसके नारे पर सब मुतवज्जा हुए। किताब के 4वें बाब में ये साफ लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल में कौन से इक़दाम उठाए जाए। उसूल नंबर 11 पढ़ उसूल नंबर 11। मिस्री पाकिस्तानी दिल ही दिल में विर्द करने लगा। इसमें लिखा है उसूल नंबर 11। यूनुस को इस्तेमाल करने की वजह एक ये भी थी, वो लड़का अपनी आधी अकल इस्तेमाल करता था। ज़रा सा उसे तवज्जो का मरकज़ बनाओ और वो मग़लूब हो जाता। जल्दबाजी में आते उसे जो एक सत्र अलग रंग में नज़र आएगी वो वही सबको पढ़कर सुना देगा। हाँ ये उसूल नंबर 11। उसूल नंबर 4। फातिर की विर्द करती ज़बान दांतों तले आए कराते हुए वो झुक गया। दूर खड़ी गुलजान मुस्कुराई। फातिर इस्लाम अपनी बेईमानी में एक बात भूल गया। जल्दबाज शख्स दबाव से बचने के लिए नज़र में आने वाली सबसे वाज़ेह और पहली शय चुनता है। यूनुस ने भी यही किया। ऐसी सूरत हाल में 90% लोग यही करते हैं। यहाँ उसूल 4 में ये वजाहत की गई है। खड़े होते निगार के सामने आया। अगर तख्त का कोई वारिस मौजूद नहीं तो साबिका मलिका के खुसूसी मुलाजमीन खादिम और कनीज़ को फैसला करने का मुकम्मल हक है कि कौन तख्त के लिए बेहतर होगा। कोई आला या मुश्तरका ताकत उनके फैसले को टोक या रोक नहीं सकती। अपनी बात के इख्तिताम में बेसांस होते उसने सबके चेहरों को देखा। हर एक इंसान उलझा हुआ और शायद इस उसूल से गैर मुतासिर था। फातिर इस्लाम ने कुछ सोचते हुए गुलजान को देखा। अबील के कान में झुकी, वो न जाने क्या कह रही थी। पलटने पर फातिर से नज़र मिली तो खूबसूरती से मुस्कुरा दी। फातिर इस्लाम को जैसे किसी ने बीच बाजार में जूता दे मारा हो। वो तो साथी थे, उनकी मंजिल तो एक थी, फिर वो इस कदर फासले पर क्यों दिखी? आपने ही कहा था फातिह सर कि जो फैसला फ़ायदेमंद है बगैर दूसरे से मशवरा किए उस पर अमल कर लो। गुलजान के लब खामोश थे मगर उसकी आंखें बाआवाज़ ये जुमला कह रही थी। वहाँ खड़े उसे अपना आप सदी का बेवकूफ़ तरीन इंसान लगा। वो किसी और के किए दलदल बछा रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि कोई उसकी पुश्त में भी छुरा नहीं घोंपेगा? ये इस कदर बेढंगा उसूल बनाया किसने था? मोहम्मद ने बिल आखिर तमाशे में हिस्सा लिया, बस सबसे नज़रअंदाज होने के लिए। जैसे भी है, निगार ने काबिल को देखा। हमें इसके मुताबिक चलना होगा। शहजादी अबील निगार की पुकार पर वो तेज़ कदमों से सामने आई। चूँकि मलिका का मौजूदा खादिम कोई नहीं था और यकीनन एक कानून ये भी है कि जो खादिम मकाम छोड़ जाए इसकी दरबार में कोई हैसियत नहीं, तो फैसला अबील लेगी। यूनुस को देखते पूछा। वो लड़का मदद की खातिर अपने साथियों को देखने लगा। कोई बात नहीं, आप वो उसूल बाद में ढूंढ लीजिएगा। यूनुस ने शर्म से कान खुजाए। साबिका मलिका की कनीज़ शहजादी अबील को काबीना से मुकम्मल आज़ादी है, वो सोच समझ कर अपना फ़ैसला ले। मैं अपना फ़ैसला जानती हूँ। निगार के जुमले के बाद फ़ौरन अबील ने कहा। वहाँ इन सब के हाथ बेबस थे। गुलजान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। अदूब तब तक शिकस्त तस्लीम कर चुकी थी मगर फातिर का गम ताज़ा था। खसारा किस किस के हिस्से में आया? आगे आते अबील ने गद्दी पर रखा वो ताज उठाया और एक तायराना निगाह सब के चेहरों पर डाली। निगार उसे यूँ देख रही थी जैसे शहजादी नहीं भूत हो। सुर्ख रुमाल वाली ने पलट कर अब्दुल्ला को देखा जिसने आंखें झपकाते उसका हौसला बुलंद किया। अबील खिलखिला उठी। मैं शहजादी अबील और साबिका खादिमा अपने मुकम्मल अक्ल हवास के साथ 3 कदम चबूतरे की पिछली तरफ, 19वीं मलिका माँ 2 कदम, साबिका मलिका की मुहाफिज खास 1 कदम गुलजान को मुनक्किद करती हूँ।
गुल के सुनहरी बालों पर एक हीरे वाला ताज रखते पीछे हटते ताजीम दी। सारा हाल सन्नाटे में डूब गया। सबने तेज सांस खारिज की, जैसे आसेब देख लिया हो। वापस उसी दिन में आओ जब अलमीरा और फातिर ने रास्ते जुदा किए थे। किताबों का ढेर एतराफ में बिखरा था और उसमें छुपी गुलजान हाँफते हुए फातिर की मतलूबा किताबें ढूंढ रही थी। कुछ देर पहले फातिर की दी गई किताब में जो उसने पढ़ा था, वो उसका चैन सुकून सब अपने साथ ले गया था। आई तो वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने थी, मगर किसे मालूम था बदगुमानी की एक नन्ही कोपल दिल में बसाए ले जाएगी। कानून की किताबों में से गर्द झाड़ते वो एकदम ठहरी। एक मोटी किताब में कुछ सफ़ात के किनारे मोड़ रखे थे। गुलजान के दिल को कुछ हुआ। क्या उसको जवाब मिलने वाला था? जवाब ना सही, उसकी आंखें ज़रूर खुल गई। मुतादिद खाली खानों में उसूल और कवानीन लिखे थे। हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी लिखाई और रंग बाकियों से मुख्तलिफ था, यूं जैसे किसी ने अपनी मर्जी से रद्दोबदल किया हो। आंखें छोटी करते उसने जहन पर जोर डाला। ये लिखाई कुछ जानी पहचानी थी। जेब में रखी किताब निकालते उसने जो ही दोनों को एक दूसरे के मुतवाज रखा, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये तो फातिर की लिखाई थी। इस कदर बदनुमा और टेढ़ी लिखाई थी, इस इंसान की गुल कैसे ना पहचानती। मगर सवाल ये आता था, उसने ये कानून लिखे कब? उनका मकसद क्या था? गुल को क्यों नहीं बताया गया? शकों को शबहात को नज़रअंदाज करते उसने उसूल पढ़े। अगर तख्त का कोई लाजमी वारिस नहीं मिलता तो मलिका माह का ताज रियासत में मौजूद तमाम औरतों को पहना कर चांद वाली रस्म को दोबारा किया जाएगा। गुलजान ने बेजारी से आंखें घुमाई। फातिर का ये उसूल निहायत फजूल था। भला हीरे को चमकाएगा कैसे? वो इस सब के बारे में फातिर से बाद में पूछेगी। तब तक उसकी नीयत कहीं से भी धोखा देने की नहीं थी, मगर फिर बहकने में देर कितनी लगती है। हमारी 19वीं मलिका माह की ताजपोशी कल शाम मुनक्किद की जाएगी। शहजादी अबील ने खामोश हुए लोगों को जगाया। लोगों ने एक दूसरे को नाखुशी से देखा। कुछ देर लगी थी और फिर धीरे धीरे हॉल कमरा नारे से गूंजने लगा, कमजोर जबरी नारों से। मलिकाए माह, मलिकाए माह, मलिकाए माह। किसने किसे खेला था? कौन धोखे में नहीं था? हाल के फातह भी अपने कब्र की मिट्टी खुद खोद रहे थे। धोखे और झूठ की राह पर खड़े इंसान के इर्द गिर्द भी इस जैसे नासूर ही पलते हैं। इस बात से 19वीं मलिका माह बेखबर थी। कुछ दिन पहले तहखाने की सीढ़ियां उतरकर आज तुम दाएं मुड़ने की बजाय बाएं तरफ चले आओ। माहिनिगार के लिबास की गर्दन ऊंची थी और ताज भारी और बेढंगा। वो यूं चल रही थी जैसे इन रास्तों पर किसी को खोज रही थी। उसे ज्यादा देर नहीं खोजना पड़ा। बीच रास्ते में ही एक औरत उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी। सर के बालों का रंग शहद, लंबी खूबसूरत उंगलियों में बेड़ी और हल्के से आगे पीछे होती कुर्सी। सामने मौजूद औरत हर बार उसका ज़ब्त यूं ही आजमाती थी। तुम बाज नहीं आओगी ना? कदम कदम चलकर वह अपनी बहन के सर के करीब आई। माह कामिल की हिलती कुर्सी ठहर गई। कुछ लम्हात के वक्फे बाद सर उठाते पीछे देखा। शब बखैर। बेड़ी का एक गहरा कश लेते उसने निगार की आंखों में देखा। आज इस महारानी का ताज और दुपट्टा गायब था। क्यों कर रही हो ये सब? वैसे तो मार पीट के हक में नहीं थी, मगर इस वक्त हाथों को आपस में मिलाए बहुत मुश्किल से खुद को हाथ उठाने से रोके हुए थी। तुम्हें ही अलमीरा को मलिका के मकाम से हटाना है। मैं तो बस मदद कर रही हूँ तुम्हारी। धुआं फिजा में खारिज करते उसने गर्दन कुर्सी की पुष्ट से लटका दी। तुम मदद बगैर कीमत के नहीं करती। बताओ क्या चाहती हो? निगार का गुस्सा लम्हा बलम्हा बढ़ा था। कामिल अपनी बहन के अंदाज पर हंसने लगी। अलमीरा ही की तरह उसकी आंखें भी हंसते हुए छोटी हो जाती। अपना खोया हुआ मकाम कुर्सी को दायां बाएं घुमाते उसने बेड़ी वाला हाथ एक तरफ ढलका दिया। छोड़ा हुआ मकाम? तुम वो जगह खुद छोड़ कर गई थी और अब मैं वापस आना चाहती हूँ। एकदम से कुर्सी का रुख निगार की तरफ घुमाती वो सीधी हो बैठी। आंखों में से सारी लापरवाही चालाकी एक लम्हे में फना हो गई। छोड़े हुए मकाम पर वापस आने वाले में गैरत की कमी होती है। निगार ने तनी हुई गर्दन से जवाब दिया। खाली रास्ते में उनकी आवाज़ ईंटों की दीवार से टकराकर गूंज रही थी। वाजिब वाजिब। मगर साथ रखे बर्तन में बेड़ी की राख गिराते हुए मुस्कुराई, एक हमदर्द खालिस मुस्कुराहट। मैं उस मकाम को कमा रही हूँ, छीन या हत्या थोड़ी ना रही हूँ। निगार खामोश हो गई। इस तासुरात हमेशा की तरह पहली
ایک ہی تیر سے درجن شکار کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ ملکہ بھی چلے جائے گی اور اس کے وہ کچھ پالتو بھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے تمہارے ساتھ آئیں گے؟ لہجہ اور انداز ہموار تھا۔ چوہے بلی کے کھیل میں بھول بھلائے اگر بلی کی ہو تو چوہے کو صرف پنیر کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں انعام کی طرح تھمایا نہیں جاتا۔ آنکھوں کو بند کرتے اس نے مجھ پہ بھروسہ رکھو کا اشارہ کیا۔ ایک طرف رکھا اپنا تاج اور ساتھ لٹکتے مختصر سے دوپٹے کو اٹھاتے اس نے کرسی چھوڑ دی۔ بس میری بنائی کہانی کے مطابق چلتی جاؤ، اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ تاج کو اپنے بالوں میں لگاتے اس نے کپڑے کا پلو درست کیا۔ آخر کو ہم بہنیں ہیں۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا دباتے وہ ساتھ سے گزر گئی۔ نگار اپنی جگہ پر یوں کھڑی تھی جیسے یہ ملاقات کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ ماہ کامل کی وہ آخری جتاتی ہنسی ابھی بھی در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ جب نگار نے ہاتھوں کو جدا کیا تو ہتھیلی پر واضح ناخنوں کے نشان بن چکے تھے۔ کاش وہ اپنی بہن بدل سکتی۔ تو یہ قسط نہیں ختم ہوتی ہے، تو 11ویں قسط ہم نے ختم کر دی۔ اب ہم 12ویں قسط پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اس قسط پر گزارا کریں۔ آئی ہوپ میں نے یہ کافی بڑا ویڈیو آپ لوگوں کو دیا ہے تو آپ خوش ضرور ہوں گے۔ تو بس خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔